Dear students, today we are going to study mole concept. Before going depth in mole concept, first we have to learn some terminology. Number 1, relative atomic mass. Relative atomic mass. Number 2, atomic mass. And number 3, average atomic mass. Average atomic mass. So first we have to learn what is the relative atomic mass. Relative atomic mass is nothing but mass of one element. Mass of one element divided by 1 by 12 of C12, mass of C12 element. Now, in the historical part, we studied the unitary method. Hydrogen is taken as 1. Then after that, it was rejected and standard oxygen was taken. In last, carbon has actual 12 isotopic atomic mass. So the standard term nowadays we are using, that is the C12. After that, second term is atomic mass. Atomic mass is nothing but relative atomic mass. Relative atomic mass multiplied by 1U. Now what do you mean by U? Atomic mass unit. So U is nothing but atomic mass unit. In previous days we called it AMU, and it has new abbreviation, that is the U. Now 1 U is equal to reciprocal of Avogadro's number. Reciprocal of Avogadro's number is equal to 1 upon 6.022 into 10 raised to power 23 is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 24 gram, or it is 1.6 into 10 raised to power minus 27 kg. Now we have the third term, that is the average atomic mass. Average atomic mass is calculated via isotopic mass. Isotopic mass. So isotopic mass, suppose that we have two isotopes. We have two isotopes. In previous classes you studied what are isotopes. What are isotopes? Isotopes are the species having same atomic number but different atomic mass. Such species are called as isotopes. Now suppose that any element has two isotopes. So isotope 1 and isotope 2. So we correlate a term P, P1 and P2. Simply meaning percentage. Simply meaning P stands for percentage. Or in another word, we can say that relative abundance. Relative abundance. While term A1 and A2 is called as isotopic atomic mass. A is called as simply atomic mass. By using this term, we can say that average atomic mass, average atomic mass is equal to
P1A1 plus P2A2 divided by P1 plus P2. If you have infinite isotopes, more than one isotope, you can up to PNAN up to Pn. This formula can be used to calculate average atomic mass. Now the next term is the gram atomic mass. Next term is gram atomic mass. Now what is the gram atomic mass? Gram atomic mass is nothing but atomic mass expressed in gram. Atomic mass expressed in gram. Expressed in gram. Now it is time. Now we are going to study. Now we are going to आती है 1.99. अब हम कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि एंट्रेंस में न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं. सो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ relationship between mole and number. अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ atoms in 5 mole कैल्शियम. तो देखते हैं इसका आंसर कैसा आएगा. बाय कॉन्सेप्ट, बाय डेफिनेशन हम जानते हैं 1 मोल कंटेन Na कैल्शियम एटम्स. सो 5 मोल कैल्शियम कंटेन. बहुत आसान है बच्चों, यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर लो. ठीक. सो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 Na कैल्शियम एटम्स. अगर एंट्रेंस में आपको यह आंसर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहां पर Na की वैल्यू भर दो. हो सकता है यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर ना लिख के क्या लिखा गया हो, उसकी वैल्यू लिखी गई हो. हमें पता है एवोगैड्रोस की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. इसलिए इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम्स. अब आप इसे सॉल्व कर पाओगे. इसी तरह अब अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ molecules and atoms in 5 mole कैल्शियम कार्बोनेट. तो इस बार कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बच्चों, एटम है या मॉलिक्यूल है? एटम है या मॉलिक्यूल है? ऑफ कोर्स ये मॉलिक्यूल है. इसलिए हम कहेंगे बाय डेफिनेशन जो हमें पता है 1 मोल CaCO3 contain Avogadro's number of molecules of CaCO3. और क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया गया 5 मोल CaCO3. सो 5 मोल CaCO3 ये देगा x. So x is equal to 5 into Na, that is equal to 5 into 6.022 into 10⁻23 molecules of CaCO3. एक बार फिर से इस चीज को देख लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है?
मॉलिक्यूल है, इसलिए 1 मोल में बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल एज मैनी एज पार्टिकल। तो बाय डेफिनेशन 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर एक मॉलिक्यूल में इतना मॉलिक्यूल आता है, अगर 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल आता है तो 5 मोल में कितना आएगा? सो सिंपल, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें सेकंड पार्ट है, आई हैव टू कैलकुलेट अगेन नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, और 3 ऑक्सीजन है। सो 1 कैल्शियम कार्बोनेट ऑलवेज कंटेन 3 + 1 + 1 टोटल, वेरी गुड, 5 एटम्स। टोटल कितने एटम्स मिलेंगे? 5 एटम्स। नाउ 1 molecule of CaCO3, 1 molecule of CaCO3 contain total 5 atoms। बाय डेफिनेशन अब हम कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन अब हम कह सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल में इतना एटम है, व्हाट वी हैव द 5 मोल। 5 मोल में हमने कितने मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए? 5 मोल में हमने कितने कैलकुलेट किए? 5 × Na, 5 × Na। सो 5 × Na मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन X एटम्स। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां से हम कह सकते हैं X = 25 Na। अब Na की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 25 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। बहुत ही आसान है। तो अब इसे हम थोड़ा सा ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं कि क्या हम इसमें ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं क्या। अब अगर हम इसे ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं, तो अभी हमने देखा कि अगर 1 मोल कंटेन Na, देन 5 मोल कंटेन X, X = 5 × Na। मीन्स अगर आपको मोल दिया गया है और मोल से आपको नंबर की तरफ आना है, इन द केस ऑफ एटम्स, इन द केस ऑफ एटम्स, अगर मोल से आपको किसकी तरफ आना है? नंबर की तरफ आना है, तो आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, दैट इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। लेकिन अगर आपको नंबर से मोल की तरफ जाना है तो हम उसे कह सकते हैं डिवाइडेड बाय Na, डिवाइडेड बाय Na, दैट इज नथिंग बट Na की वैल्यू डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल अगर ऐसा करना है, इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल अगर ऐसा करना है, तो अगर आपको डाटा मोल में दिया गया है तो मोल से पहले क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब अगर आप मोल से दूर जाते हो तो क्या करते हो? अगर आप मोल से दूर जाते हो तो क्या करते हो?
मल्टीप्लाई। तो अगर आप मोल से दूर जाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। उसी तरह यहां से इधर जाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक उसी तरह अगर इसका रेसिप्रोकल पाथ लेते हो, रिवर्स लेते हो, क्वेश्चन यहां से दिया है और मोल कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड। तो ऐसा कह सकते हैं कि इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स एंड इट इज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अगर आपको एग्जाम में मोल दिया है और एटम निकालना है तो ये पाथवे ले लो, अगर नंबर ऑफ एटम दिया है और मोल्स निकालना है तो ये पाथवे ले लो।